हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है आज के भागवतम के स्वाध्याय में। हम राधा माधव कीर्तन करके बाद में मंगलाचरण करके आगे श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवामा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी गिरिवरधारी जय गोपी जनवामा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
सभी उपस्थित भक्तवृंद, उपस्थित यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मिया, लड्डू गोपाल, गौरनीताई, पंचतत्व, गुरु परंपरा, श्री प्रभुपाद, श्री गुरुदेव, सबके आशीर्वाद से और सभी उपस्थित भक्तों वृंद से आशीर्वाद की याचना करते हुए आज की सेवा का मैं आरंभ करता हूं। आशीर्वाद करिए, यथारूप, यथा समय, यथा योग्य शब्द मेरे मुंह से निकले और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को मैं जस्टिफाई कर पाऊं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं केंटो 7 chapter 13 verse number 8. This no? Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasti Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naistiki Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Giri Tatkrupatamah Vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram 7.13.8. The chapter is entitled to Science of God. मैं इंग्लिश में ये श्लोक का अर्थ और तात्पर्य पढ़ूंगा और बाद में हिंदी में ही इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 7.13.8 न शिष्यानुबंधिता ग्रंथ नवभूषयेत् बहून् न व्याख्यानुपयुज्यिता नारम्भान् अरभेत् क्वचित्। I'll read again. न शिष्यानुबन्धिता ग्रन्थानैव भावसेत् बहून् न व्याख्यानुपयुज्यिता नारम्भान् अरभेत् क्वचित्। Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A translation. A sannyasi must not present allurements of material benefits to gather many disciples. Nor should he unnecessarily read many books or give discourse as a means of livelihood. He must never attempt to increase material opulences unnecessarily. Purport by His Divine Grace Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So-called swamis and yogis generally make disciples by alluring them with material benefits. There are many so-called gurus who attract disciples by promising to cure their disease or increase their material opulence by manufacturing gold. These are lucrative allurements for unintelligent men. A sannyasi is prohibited from making disciples through such material allurements. Sannyasis sometimes indulge in material opulence by unnecessarily constructing many temples and monasteries, but actually such endeavors should be avoided. Temples and monasteries should be constructed for the preaching of spiritual consciousness or Krishna consciousness.
not to provide free hotels or persons who are useful for neither material nor spiritual purposes. Temples and monasteries should be strictly off limits to worthless clubs of crazy men. In the Krishna conscious movement, we welcome everyone who agrees at least to follow the movement's regulative principles: no illicit sex, no intoxication, no meat eating, and no gambling. In the temples and monasteries, gathering of unnecessary, rejected, lazy fellows should be strictly disallowed. The temples and monasteries should be used exclusively by devotees who are serious about spiritual advancement in Krishna consciousness. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains the word Arambhan as meaning Mathadi Vyaparan, which means attempt to construct temples and monasteries. The first business of the sannyasi is to preach Krishna consciousness, but if by the grace of Krishna facilities are available, then he may construct temples and monasteries to give shelter to the serious students of Krishna consciousness. Otherwise, such temples and monasteries are not needed. चलो बाकी जाए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थानिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है उसमें सन्यासी के शिष्टाचार, उनके व्यवहार, उनके गुण के बारे में बताया गया है। ये 7वां कैंटो में फर्स्ट चैप्टर था भगवान कैसे संभाव है, और वहां पे जय विजय की बात आती है और जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन के आए। तो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के बारे में, प्रहलाद महाराज की गुण लीलाओं के बारे में चैप्टर नंबर 2 से 10 तक उसका विवरण हुआ। बाद में युधिष्ठिर महाराज नारद जी को बताते हैं कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था, वर्ण और आश्रम की रचना होती है और जीव किस प्रकार से जीव को वर्ण व्यवस्था के अंदर रह के आध्यात्मिक उत्थान का पाथ तय कर सकता है। तो ये वर्ण व्यवस्था के बारे में पहले 2 चैप्टर 11वां 12वां और ये 13वां चैप्टर, और हमने पूर्ववत वक्ताओं से गृहस्थाश्रम के बारे में और 4 वर्णों के बारे में समझा। अभी संन्यास आश्रम के बारे में ये चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो कभी ऐसा लगता है कि संन्यास आश्रम के बारे में हम समझ के पढ़ के हमें क्या फायदा मिलेगा, हाउ इट इज रिलेवेंट टू अस। I mean, probably nobody is going to take sannyasa, sannyas is present here, but somehow we think, कैसे हम सोचते हैं कि ये संन्यास आश्रम के शिष्टाचार, उनके कार्यकलाप, उनके बारे में समझ के हमें क्या, हाउ इट इज रिलेवेंट टू अस, हाउ इट इज एप्लीकेबल टू अस। पर हमें समझना है कि भागवतम वो एक पक्का फल है, सुखमुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम। ये मीठा अमृत समा फल जहां से भी खाते हैं तो वो मीठा लगता है। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज के बारे में सोचो कि वो 7 दिन के बाद उनकी मुक्ति होने वाली है, और उनके लिए ये विषय वस्तु इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ हैं और राजवी परिवार से है, राजा है, और फिर भी उनके लिए ये विषय वस्तु इतनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे लिए भी ये सब जो विषय के बारे में चर्चा हो रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझना। प्रियव्रत महाराज 5वें कैंटो में आता है, प्रियव्रत महाराज नारद मुनि की शिक्षाओं से प्रभावित होकर, नारद मुनि ने बहुत उनको ज्ञान दिया भक्ति के बारे में। नारद मुनि के पास भक्ति मिलेगी तो भक्ति के बारे में बहुत ज्ञान दिया, तपश्चर्या के बारे में बताया, और बताया कि गृहस्थ जीवन तो अंधकूपम है, गृहस्थ बनना ही नहीं है आपको। और उसके बाद स्वयंभू मनु को रिटायर्ड होना था, उनको पूरी जवाबदारी देनी थी प्रियव्रत महाराज को। तो प्रियव्रत महाराज को तो नारद मुनि ने शिक्षा दिया कि आपको तो ये कोई
भौतिक कार्यों के अंदर लिप्त नहीं होना है, भौतिक कार्य में अपने आप को उलझाना नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को टेंशन हुआ कि अरे, अभी नारद जी ने ऐसी शिक्षा दी है और इनको अभी हम कैसे गृहस्थ बनने के लिए प्रेरित करें। तो वहां पे 4 महाजन एक साथ प्रियव्रत मुनि को समझाने के लिए, प्रियव्रत राजा को समझाने के लिए आया कि आप कृपया गृहस्थ आश्रम और ये पूरे प्लेनेट का व्यवहार संभालने के लिए ये जवाबदारी अपने हाथ में लो। तो आप समझ सकते हो कि गृहस्थ जीवन भी इतना महत्वपूर्ण है। गृहस्थ जीवन से भी आध्यात्मिक उन्नति हमारी प्राप्त हो सकती है। प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि हर एक आश्रम में से पूर्ण सिद्धि, आध्यात्मिक पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के का विधान है। अच्छा, ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी से बात करता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आते हैं, तो हमें समझना है कि जो भी विषय वस्तु जो समय देश काल में चर्चा हो रही है वो अनुरूप होती है। एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी से बात करता है कि प्रभु, ये जो गृहस्थ जीवन है ये आध्यात्मिक जीवन का पहला फेलियर है। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जब गृहस्थ ये बात सोचे सुनेंगे तो। बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन इज द फर्स्ट फेलियर ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, एक्सेप्टिंग गृहस्थ लाइफ। और जब गृहस्थ होता है उनको ब्रह्मचारी या गृहस्थ दूसरे गृहस्थ से बात करता है तो बताते हैं कि ये आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में हमें बहुत भगवान कृपालुवश हमारे लिए रास्ता बहुत ही सरल कर दिया है। हम बहुत ही सरलता से और इस प्रकार से गृहस्थ जीवन को हम ग्लोरीफाई करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक आश्रम, हर एक वर्ण में भगवान का परम पद पाने की, परम दास्य बनने का हमारा सौभाग्य उपलब्ध है। वो सौभाग्य हमें प्राप्त करना है। किस प्रकार से हम भगवान के दास बन के अपने आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सके। तो प्रश्न उठता है कि वर्ण व्यवस्था के क्यों है। तो पहले जो अपने वक्ता थे, सभी वक्ताओं ने अच्छी तरह से वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया कि जो भी जीव भौतिक जगत के अंदर आते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के नीचे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और उस प्रकार से अपने गुणों के हिसाब से वो उस प्रकार का कार्य करते हैं। विष्णु पुराण के अंदर एक श्लोक आता है, वर्णाश्रमाचार्यवत् पुरुष पर पुमान विष्णु आराधते पांथा न अन्य तुतोष कारणात्। उसमें बताते हैं कि वर्णाश्रम में स्थित होकर भगवान की आराधना करने का एक ही वही रास्ता है जिनसे भगवान की संतृप्ति कर सकते हैं। तो हम जो भी वर्णाश्रम में स्थित है उसमें हमें भगवान को संतृप्त करने के, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए पूरा संयोग मिला हुआ है। अच्छा, वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई है। 4.13 में आता है, हम बारंबार ये श्लोक बताते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्तेषाम कर्तारामपि विद्येयम अकर्ताराम अव्ययम। भगवान बता रहे हैं कि मैं कर्ताराम हूं और अकर्ता हूं। जैसे आगे बताया कि 3 गुणों के नीचे जीव प्रेरित होता है कि इस प्रकार का कार्य करे अपने 3 गुणों की असर के नीचे, और उस प्रकार का वो स्वभाव प्राप्त करता है। तो जैसे ही वो स्वभाव प्राप्त किया उसी प्रकार से उनका वर्ण और उनका आश्रम नक्की हो जाता है। और भगवान बताते हैं कि उनका मैं करता हूं। ये जो सिस्टम बनाई है वर्णाश्रम सिस्टम क्यों है? क्योंकि सामूहिक रूप से मानव सृष्टि आध्यात्मिक उत्थान उनका हो सके। Collectively everybody can elevate into spiritual consciousness, and that is the sole purpose of forming this वर्ण व्यवस्था। तो भगवान ने सभी मानव समुदाय के लिए एक साथ किस प्रकार से वो तीनों गुणों से परे हो सके ये व्यवस्था बनाई, और बता रहा है कि मैं कर्ताराम हूं और मैं अकर्ताराम, तुम मुझे अकर्ताराम समझो। ये कैसे समझे? कर्ताराम भगवान बताते हैं कि दिस इज द मोस्ट बोनिफाइड।
ये सबसे अधिकृत व्यवस्था भगवान के द्वारा निर्माण हुई है, उनको सभी को अंगीकार करना है। इसमें से कोई जीव, कोई मनुष्य बाहर नहीं, उनको अवहेलना उसकी नहीं कर सकता। और बताते हैं कि अकर्ताराम, तो अकर्ताराम कैसे? विधेयम अकर्ताराम अव्ययम। तो जैसे ये कैसे समझे कि किसी स्कूल में 10th स्टैंडर्ड की या कोई भी स्टैंडर्ड की बुक्स बनानी है, तो टीचर क्या करेगा कि वो स्टैंडर्ड्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनका, उनकी मानसिकता, उनका मेंटालिटी, उनकी समझ शक्ति कितनी है, उस हिसाब से उस प्रकार के कोर्स को इंक्लूड करेंगे वो टेक्स्ट बुक में। तो उसमें कोई टीचर को वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही इज ऑलरेडी लिटरेट, he knows everything, he has to understand at what level one will be accepting. So उस हिसाब से, वो हिसाब से उनका कोर्स करिकुलम बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से ये भगवान के द्वारा वर्ण व्यवस्था निर्माण हुआ है, वो हमारे लिए है, भगवान उनसे परे है। अच्छा, वर्ण व्यवस्था बनी है, तो वर्ण व्यवस्था के अंदर उनका उद्देश्य क्या है वो भागवतम में बताते हैं 1.2.13 में। अथ पुंभी द्विजस्य वर्णाश्रम विभाग स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। हम जो भी धर्म में है उनका एक ही प्रयोजन है, संसिद्धिर्हरितोषणम, भगवान की खुशी के लिए, उनके आनंद के लिए, उनकी संतृप्ति के लिए हम वो कार्य करें। We should become instrument in the hands of Krishna for his pleasure. We should try maximum to please Guru and Gauranga. We always say no that let me please bless me so that I do render service. में आप मुझे कृपया शक्ति प्रदान करिए कि मैं गुरु गौरंगा की खुशी के लिए कार्य कर सकूं। तो एक ही पर्पस है, स्वनुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हरितोषणम अभी उसके आगे वाले श्लोक के अंदर बताते हैं 1.2.8 में, धर्म स्वनुस्थिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पादयेद यदि रति श्रम एव ही केवलम। वो बताते हैं कि जो धर्म के अंदर जो भी कार्य करे, गृहिणी अपने घर का कार्य करते हैं, कोई कंपनी में काम करते हैं, कोई खेती का कार्य करते हैं, कोई मतलब अलग अलग कार्य हम करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, उनका एक ही प्रयोजन है, विश्वक्सेन कथा सुय, भगवान कृष्ण की कथा में रुचि की कैसे वृद्धि हो। किसी भी काम में लग के कृष्ण भगवान की कथा में रुचि नहीं आती है तो श्रम एव ही केवलम न उत्पादयत रति। रति रति मतलब हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि, जब भी उनका वर्धन नहीं होता है कोई भी कार्य करने में, तो वो मात्र श्रम ही कहलाता है। और सबको मालूम है कौन श्रम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? गधा। गधा, वैशाख नंदन। गधा बोलने के लिए भी हमें शर्म आती है, तो वैशाख नंदन शब्द दिया है गधे को कि गधा क्या करता है, वैशाख महीने के अंदर पूरा घास सूख गया होता है और वो सोचता है कि मैंने पूरा खा गया, मेरा एपिटाइट कितना स्ट्रांग है, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दिस प्लेस, मैं पूरा घास खा लिया है। और वही सोचते सोचते वो मोटा होता है। ऐसा कहीं पे लिखा है, हमने देखा नहीं है, पर इसलिए उनको वैशाख नंदन बोलते हैं। तो श्रम एव ही केवलम, हम भी वैशाख नंदन हो जाएंगे जो हमारे कार्य करते करते कृष्ण भगवान की कथा में रुचि का वर्धन नहीं होता है। वेरेवर वी आर सिचुएटेड, कोई भी स्थिति में हो, कोई भी किसी के साथ भी हमारा व्यवहार हो, या कौटुंबिक हो या अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस के कार्यों में लगे हो, कहीं पे भी हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार से मेरी रुचि भगवान की कथाओं में बढ़े। तो ये है वर्णाश्रम का उद्देश्य। तो वर्णाश्रम क्यों किया है, उनका उद्देश्य क्या है वो बताया है। अभी हम संन्यास के ऊपर आते हैं। संन्यास मतलब परम आध्यात्मिक सिद्धि का परम स्थान, परम स्थिति, परम उपाधि। 6.1 में बताते हैं, 6.1 में अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी निरग्नि न
चक्रीय क्या बताते हैं कि अनाश्रित कर्म फलम, कि जो अपने कर्म फलों से पूर्ण रूप से विरक्त हो गया है, कर्म फलों की इच्छा नहीं करता है, कर्म करते करते कुछ भी फल मिले वो भगवान को समर्पित कर देते हैं, वो प्रभावित नहीं होता है कर्म फल को भोगने के लिए। तो ऐसे कर्म फल से अनाश्रित होता है वो योगी भी है और वो सन्यासी भी है। तो भक्ति योगी ने ये गुण ऑटोमेटिकली अर्जित किए हैं क्योंकि उनके सभी कार्य भगवान की खुशी के लिए होते हैं। वो कोई कार्य की फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है। तो ये है सन्यासी की व्याख्या कृष्ण भगवान ने छठे चैप्टर के अंदर की है। 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। एक कुटी चक्र, बहुधा, परिवजकाचार्य एंड परमहंसा। तो ये कुटी चक्र जो है, कुटी चक्र जो सन्यास की जो स्थिति है उसमें सन्यासी घर के बाहर रहता है, गांव के बाहर, और उनको घर से उनके जीवन निर्वाह के लिए जो भी चाहिए वो दिया जाता है, पर वो घर के परिवार के साथ नहीं रहता है। और उससे ऊपर का स्टेज है बहुडाक, जिसके अंदर वो मधुकरी मांगने घर घर जाता है, सब जगह से वो भिक्षा मांगता है और अपना जीवन यापन करता है। और उससे ऊपर का स्टेज है परिव्राजकाचार्य, जो एक स्थल पे नहीं रहता और सब जगह पे घूमते हैं। किसके लिए घूमते हैं? सभी जीवों के उद्धार के लिए घूमते हैं। जो उन्होंने आध्यात्मिक पूंजी कमाई है, प्रेम कमाया है भगवान का, वो प्रेम बांटने के लिए परिव्राजकाचार्य हर जगह, देश देश और नगर नगर, गांव गांव में घूमते हैं। हमारे जो गुरुवर्य भक्त लोग जो भी है, आपको पता है कि किस प्रकार से प्रचारक हर जगह पे जाके कृष्ण भक्ति को बांटते हैं। और सबसे ऊपर का स्टेज है वो है परमहंसा। परमहंस स्टेज पे सन्यासी है, वो एक जगह पे बैठते हैं और एक्सक्लूसिवली अनन्य भाव से भगवान के नाम रूप गुण लीला के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वो अंतिम स्टेज है जहां से वो शरीर छोड़ के, देह छोड़ के, 3 गुणों से परे होके भगवान की सेवा में लग जाता है। तो ये 4 प्रकार के सन्यासी के बारे में मैं चर्चा की, 4 और सन्यासी की व्याख्या। अच्छा, किसी को ये सब सुन के सन्यासी बनने की इच्छा है तो ज्यादा जानकारी आपको इस्कॉन के sannyasministry.com से मिल सकती है। इतनी माहिती है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि लेक्चर में हम समाप्त नहीं कर सकते, पर जिसके अंदर प्रभुपाद जी ने बहुत कोट्स दिए हैं कि संन्यास आश्रम मतलब सिविल सुसाइड, सामाजिक रूप से मैं पूर्णाहुति कर देता हूं अपने जीवन की, उनको सन्यासी बोलते हैं। और बहुत सारा गुणों के बारे में शास्त्रों को उनका विधान लेके बताया गया है कि किस प्रकार से सन्यासी, किनको सही सन्यासी बोलते हैं। एक फॉर्म दिया जाता है, इसको की मैं बात करता हूं अपने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, किस प्रकार से सन्यासी बनते हैं। सबको प्रश्नार्थ होगा कि सन्यासी कैसे बना जाता है। तो ये वेबसाइट के अंदर उनकी क्वालिफिकेशन लिखा है, और किसी को पढ़ना है कि कौन सन्यासी बनने जा रहा है और उनकी क्या प्रोफाइल है, तो उसे भी पता चलता है कि हाँ कैसे कैसे लोग सन्यासी बनने के लिए उत्सुक हैं। तो वो भी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो सन्यासी बनने के लिए अपनी एप्लीकेशन दी है और उनकी प्रोफाइल लिखी है। तो ये सन्यासी धर्म अपनाने की प्री क्वालिफिकेशन, प्री रिक्विजिट क्या है अपने संप्रदाय में, वहां से मैं पता, पर बेसिक क्राइटेरिया क्या है, वो है अनाश्रित कर्मफल, कर्मफल से बाहर उठ जाना है। अच्छा, ये रहा एक्सटर्नल्स। एक्सटर्नल्स मतलब ये एक हमारा बाहरी हमारा एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, कि जिसके अंदर एक प्रकार से रिचुअल्स के रूप में है। जैसे हम लोग ये जब्बा पहनते हैं, सीखा रखते हैं, तिलक करते हैं, तो ये रिचुअल्स क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा आध्यात्मिक मूड है, आध्यात्मिक हमारा भाव है, उनको एनहांस करें, उनमें उत्साह दे, ज्यादा से ज्यादा हम आध्यात्मिक कार्य में लगे। तो इसके लिए ये सब एक्सटर्नल्स है। और रिचुअल्स इसीलिए ही है कि हमारी भगवान की भक्ति करने में बल दे।
रिचुअल्स खाली अपने सकाम हेतु से करे तो उसका कोई मतलब नहीं है, पर हर एक रिचुअल्स है वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बल देने के लिए, उत्साह देने के लिए प्रयोजित होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, अभी मैं एक्सटर्नल वर्सेस इमरजेंसी के बारे में बात करता हूं। हमने एक्सटर्नल एस्पेक्ट को एड्रेस किया कि कैसे वर्णाश्रम व्यवस्था है, क्यों जरूरी है और किस प्रकार से उनका हेतु क्या है, संन्यास आश्रम क्या है। अभी इमरजेंसी की चर्चा करते हैं कि क्या इमरजेंसी में भी हमें वी हैव टू पास थ्रू ऑल दिस स्टेजेस, क्योंकि 30-40 साल की आयु में तो हमने कृष्ण भावनामृत में प्रवेश किया है, अभी तो हमने एबीसीडी सीखा है, तो किस प्रकार से संन्यास आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में हम हैं, क्योंकि अभी सबकी आयु अनिश्चित हो गई है। पहले तो ऐसा था कि 50, 60, 70, 80 के बाद शायद उनका देहांत होगा, पर अभी की स्थिति के अंदर किसी भी आयु में किसी का भी देह जा सकता है, छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी विपरीत अकाल स्थिति आ गई है वर्तमान समय में। तो ये इमरजेंसी को ज्यादा फोकस करे। महाप्रभु क्या बताते हैं, महाप्रभु सबसे शुद्ध आचार संहिता पालन करने वाले सन्यासी हैं, पर वो क्या बताते हैं, ना हम विप्रो ना च गृहपति नरपति नापि वैश्य न शूद्रो ना हम वैश्य ना हम वर्णी न चंद्रपति न वर्ण न वानस्तो यति वा। बोले मैं वर्णी नहीं हूं, मैं वानप्रस्थी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं इस प्रकार से ये चारों चार वर्ण व्यवस्था से उन्होंने अपने आप को परे बताया। ये परे इसलिए बताया नहीं कि वो 4.30 में बताया कि तेसाम अकर्ताराम अपि माम, तेसाम कर्ताराम अपि माम, कि उसके कर्ता हूं इसलिए मैं इसकी परिधि में या इनकी सीमा में नहीं आता, ये लिमिटेशंस मेरे ऊपर लागू नहीं है, इसलिए नहीं बताया। पर चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के भक्त के भाव में आया है, तो भक्त का कौन सा भाव होना चाहिए वो बाद में बताया कि किंतु प्रोद्यावान निखिला बाद में आता है, आई फॉरगॉट द वर्स बट उसमें आता है कि गोपी भरतुर पाद कमल दास दासानुदास, कि मैं गोपी के भरतु जो कृष्णा है उनके जो अखंड ब्रह्मांड के परमानंद पूर्णामृतांबी, परमानंद के सागर स्वरूप कृष्ण के दास के दास के दास के रूप में हूं। तो ये स्थिति महाप्रभु ने स्वीकार की है और हमें बताने जा रहे हैं कि हमें भी भक्त होने के नाते ऐसे दास की स्थिति को प्राप्त करना है, दास की स्थिति को समझना है और एक्सेप्ट करना है। चैतन्य चरितामृत में ये भी बताते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य वाक्य दृढ़ सत्य मानी कली काले सन्यासी रे संसार नहीं जीनी, बता रहे हैं कि सन्यास आश्रम कलयुग के अंदर संसार से, तीनों गुणों से बाहर निकल के करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे सामने है पर पर्याप्त नहीं है। संसार नहीं जीनी, ये संसार को क्रॉस कर पाना, उनको बाहर निकलना हमारे लिए संन्यास आश्रम पर्याप्त नहीं है। और महाप्रभु और बताते हैं कि किबा विप्र किबा नासी शूद्र कहने नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होय। जो कोई न्यासी मतलब सन्यासी नहीं, विप्र ब्राह्मण नहीं, मात्र जरूरत क्या है, कृष्ण तत्ववेता, कृष्ण तत्व को जानने वाला गुरु होने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। हमें गुरु बनने का क्यों बता रहे हैं, पहले बता रहे कृष्ण तत्ववेता बनो, तो हमें कृष्ण तत्ववेता बनने के लिए, कृष्ण तत्व को समझने के लिए ये बात बताई। जब भी महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे तो वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती ने देखा कि ये जो सन्यासी हैं वो किस प्रकार से भगवान के नामों में नाच रहा है, कूद रहा है, और उनको संशय हुआ कि ये सन्यासी के कर्म नहीं है। तो उन्होंने उनके साथ संवाद किया, महाप्रभु के साथ, और बताया कि वेदांत पाठ ध्यान यही सन्यासी रे कर्म ताहे छाड़ी की
કેને કરે ભાવ કેરા કર્મ પ્રભાવે देखिया तुम्ही साक्षात नारायण बिना आचार करे केने इथे की कारण क्या कारण प्रभु बोले सुनो श्रीपाद एहर कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन बोले महाप्रभु बोल रहा है कि मेरे गुरु ने बोला है कि तुम मूर्ख हो और इस प्रकार से तुम वर्तन इस प्रकार से तुम्हें कार्य तुम्हारे लिए नियोजित किए गए हैं तुम्ही मूर्ख तो मार नाहक वेदांत अधिकार कृष्ण मंत्र जपा सदा यही शास्त्र सार बोले कृष्ण मंत्र हमेशा जपो वही शास्त्र का सार है कृष्ण मंत्र होते हबे संसार मोचन कृष्ण होते हबे कृष्णार चरण नाम बिना कली काले नाही आर धर्म सर्व मंत्र नाम सार ई शास्त्र मर्म एता बोलिए कि मंत्र शिखाईला मोरे कंठे करी यही मंत्र करी लो विचारा कौन सा मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 एक ही मंत्र है उनको कंठ में रख के भगवान को नहीं बता रहे गुरु भगवान हमें बता रहे हैं गौरंगा महाप्रभु हमें बता रहे हैं कि मूर्ख बनने की हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए कौन सा मूर्खता कि मुझे दूसरा कोई तर्क वितर्क नहीं करना है मेरे गुरु ने जो बताया है वही मेरे लिए पर्याप्त है बाकी कितने साधन उपलब्ध हैं और मेरे गुरु की क्या इच्छा है वो मुझे तो इस प्रकार की मूर्खामी ही हमें आध्यात्मिक जीवन में परम सिद्धि ला सकती है एक दूसरे मूर्ख थे जब भी मैं मूर्ख बोलूं तो आप वर्ल्डली डेफिनेशन में मूर्ख मत समझना मूर्ख मतलब मैं अभी भक्तों के भाव में बता रहा हूँ जब भी महाप्रभु जा रहे थे दक्षिण भारत की यात्रा में वहां पे एक विप्र था वो भगवत गीता की पहले पृष्ठ को देखते हुए रो रहे थे ही वॉज प्रोफ्यूसली क्राइंग तो महाप्रभु ने उनको पूछा कि विप्र तुम क्यों ऐसा रो रहे हो इसमें से कौन सा सिद्धांत तुम्हें रुला रहा है तुम क्या सीखे तो विप्र बोले मूर्खामी शब्दार्थ न जानी शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु अज्ञान मानी गुरु अज्ञान से मैं मूर्ख हूं पर भगवत गीता पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं तो बोले क्या पढ़े तो बता रहा है कि अर्जुन रथ कृष्णा होए रजुधर बसी याची हाथे तोत्र श्यामला सुंदर कि ये जो रथ के ऊपर रजुधर कृष्ण भगवान रस्सी पकड़ के बैठे हैं श्यामल सुंदर हैं तो बैठ के क्या कर रहे हैं तो बता रहा है कि कृष्ण रेर अर्जुन अर्जुन कही छे ना गीता उपदेश तारे देखी मोर मन आनंद आवेश बोले उनको गीता पाठ करवा रहे हैं उनको देख के मेरे मन में इतना आवेश आ रहा है कि आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ और क्या बता रहे यावत पढ़ू तावत पढ़ू तांडे दर्शन यही लागे गीता पाठ ना छाड़े मोर मन बोले इतना पढ़ता जा रहा हूं मेरा मन इनसे विरक्त नहीं हो रहा है और हम लोग एक घंटे के भगवत गीता भागवतम क्लास में महाप्रसाद के मंत्र का राह देखते हैं कभी वो मंत्र हो कभी प्रसाद और यहाँ पे बता रहे हैं कि यावत पढ़ू तावत पाऊं तांड्र दर्शन और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई कांट कम आउट फ्रॉम दिस गीता पाठ और आता कुछ नहीं शब्दार्थ न जानिए उनको कुछ आता नहीं है बट स्टिल ही सो मच एब्जॉर्ब महाप्रभु को कितना आनंद अनुभव होता रहेगा महाप्रभु बोले हे विप्र गीता पाठ तुम्हारा ही अधिकार से ही जाने गीता यही जाने गीता से ही अर्थ सार कि ये तुम जानते हो वही गीता का अर्थ सार है कैन यू बिलीव कृष्ण भगवान अर्जुन के सामने युद्ध मैदान में पूरी भगवत गीता कही और बताया कि अभी आपको जो करना है वो करो ये मेरा उद्देश्य है ऐसा करके अर्जुन को स्वतंत्रता दी और उनको कार्य हम समझते हैं कि अर्जुन कृष्ण भगवान का भक्त होने के नाते उन्होंने वही किया जो भगवान ने किया पर यहाँ पे वही कृष्ण भगवान महाप्रभु के अवतार में वो विप्र के सामने देख के उनको कैसा लगता रहेगा कि इनको भगवत गीता कितनी कितनी उन्होंने स्वीकार की है मेरे बताते हुए पुस्तक को नहीं पढ़ के खाली देख के
Can you imagine how much he must be elevated? I mean, in other sense, we can say he must be elevated more than Arjuna. But putting that statement would be difficult. पर उनकी आध्यात्मिक स्थिति कितनी उच्च स्तर पे है, तो इसी प्रकार what is required in emergency situation, our absorption, हम पूर्ण रूप से ग्रस्त हो जाएं कृष्ण भावनामृत में, that is what is required. और प्रभु बचपन प्रभु जी ने थोड़े दिन पहले बताया था कि हमारी कॉन्शियसनेस किस प्रकार से हो, जैसे स्पॉन्ज है, उसको पानी में डालो तो कैसे पानी सूख लेता है. So we should be absorbed in devotional service. We should be absorbed in the shastras. We should be absorbed in the servicing devotees, render services to devotees, to follow the instruction of Guru Maharaj. This should be our aim, and that is ultimate perfection of our life. शास्त्र में ये जो विप्र की बात की वो तो 500 साल पहले की बात है. उससे पहले भी कुंती महारानी, ध्रुव महाराज और भीष्म पितामह, उनके एक एक श्लोक के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो लोग भी कैसे बताते हैं कि मेरी रति मति गति सब भगवान के चरणों में हो. कुंती महारानी बोलते हैं कि त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुर पतये सकृत रति अवभूतम आधा गंगे व ओधम उद्वंती. गंगे व ओधम उद्वंती, जैसे गंगा सागर में मिल जाती है उस प्रकार से मेरी मति मधुर पते के चरणों के अंदर जाए. दूसरे भीष्म पितामह, मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक लड़का है, एक राजा है, एक स्त्री है. लड़का बालक है पर वो बहुत ही ज्ञानी महाजन की लेवल पे है, इसलिए सॉरी मैं ध्रुव महाराज के बारे में बता रहा हूँ. महाजन. अच्छा, दूसरा है भीष्म पितामह. भीष्म पितामह भी क्या बताते हैं, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवरम दधाने वपुरः ककुला वृतान्नांजम विजय सखे रति अस्तु मे नवेद्या. विजय सखे, ये विजय सखे कौन है? अर्जुन का सखा कौन है? विजय होने वाला कौन है? अर्जुन. विजय का सखा कौन है? कृष्ण. उनके चरणों में मेरी रति अस्तु में नवेद्या, को किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ के बिना, मतलब भौतिक आकर्षण के बिना मेरी मति उधर चली जाए. प्रहलाद महाराज, सॉरी प्रहलाद महाराज के बारे में भी बताना चाह रहा था कि प्रहलाद महाराज बालक हैं पर महाजन की स्थिति पे है. वो क्या बताते हैं, यह यथा भ्रम्यति अयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा विधयन्ति चेता चक्रपाणिर यदेच्छया. ये चक्रपाणी के चरण में मैं जाऊं किस प्रकार से, जैसे लोहा ऑटोमेटिक चुंबक की तरफ जाते हैं ना, इसमें कोई आपको केमिकल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, लोहा है, चुंबक है, तुरंत फट से चिपक जाएगा. तो उसी प्रकार से अपनी मति किसी भी कंडीशन, किसी भी शर्तों के या किसी भी स्थिति को ध्यान में नहीं रख के किस प्रकार से अनन्य भाव से भगवान में लगे, दैट इज द परफेक्शन. और ये महाजन बता रहा है, ये कुंती महारानी बता रहा है, और ये बता रहा है कि भीष्म पितामह बता रहा है. अच्छा, हमने महाभारत की बात की, हमने चैतन्य चरितामृत की बात की कि जहां पे सभी भक्त इच्छा करते हैं कि मेरे जीवन की सिद्धि, परम सिद्धि, अनन्य शरणागति स्वीकार्य उसमें है. बराबर. अभी मैं एक आपको बताता हूँ लव स्टोरी बिटवीन अ सोल एंड लॉर्ड हिमसेल्फ. अच्छा, आप में से कितने जन मानते हैं कि गुरु के जो कथन है वो परंपरा के कथन है? जो गुरु बोलता है वो परंपरा. सब लोग. जो परंपरा के कथन है वो भगवान के कथन है, वो कितने जन मानते हैं? सब लोग, है ना. असंशयी रूप से भगवान के जो कथन है वो परंपरा के कथन है, और परंपरा के कथन है वो गुरु के कथन है. अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है हिज डिवाइन ग्रेस कदम कानन स्वामी महाराज का देहांत हुआ. अभी बताया गया था कि हर एक लेक्चर के अंदर उनका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, तो हमारी शुद्धि के लिए जरूरत है. वो भगवान का नाम लेने में इतना कष्ट अनुभव कर रहे थे कि उनके गुरु
जय अद्वैत स्वामी महाराज, हिज होलीनेस जय अद्वैत स्वामी महाराज उनको बताते हैं कि आप भगवान का एक मंत्र लो, वो पूरे माला के समान हो। तो प्लीज ऐसा बोल के बताना चाह रहे थे कि आप नाम लेने का आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। कौन बोल रहा है? कौन है वो? गुरु कौन बोलता है? परंपरा। परंपरा कौन है? कृष्णा। कृष्णा बोलते हैं कदम कानन स्वामी महाराज को, आई कांट सी योर बॉडीली पेन, यू प्लीज डोंट चेंज। कैन यू बिलीव द इमोशंस बिटवीन द डिवोटी and his guru, devotee and Krishna? कि यू प्लीज डोंट चेंज, आई कांट सी योर फिजिकल पेन, आपके शारीरिक दर्द को मैं देख नहीं सकता, आप भगवान का नाम लेने की अभी जरूरत नहीं है। जय जो हिज होलीनेस हिज डिवाइन ग्रेस कदम काली स्वामी महाराज क्या बताते हैं कि गुरु महाराज प्लीज डोंट ऑर्डर मी। भगवान को बताते हैं कि आपको प्रेम करने के लिए मुझे रोको मत, आपका नाम लेने के लिए मुझे रोको मत। गुरु परंपरा का प्रतिनिधि, परंपरा कृष्णा का प्रतिनिधि। I'm not just speculating. I hope you all are agree with what my speculation, I mean, whatever thoughts are this there in this. तो कदम कानन स्वामी महाराज भगवान को बता रहे हैं कि आप मुझे रोको मत आपसे प्रेम करने के लिए। और भगवान की ही ये जो भौतिक सृष्टि से दिया गया, सन्यासी के जो शरीर होता है वो हमेशा दिव्य होता है, पर उनके शरीर से जो दुख होता है वो भगवान को भी उनसे पीड़ित है। और वो इनसे ज्यादा बड़ी लव स्टोरी कोई होगी? ये क्या भागवतम के कैरेक्टर्स या जो हम लोग पर्सनालिटीज के बारे में सुनते हैं उससे ये क्या कम है? हमारे गुरु महाराज, आप लोग अभी रामनवमी आ रही है, रामनवमी में वो लीला आप लोगों ने सुनी होगी कि बंदर जब भी युद्ध कर रहे थे तो उनकी वो जब रण मैदान में भगवान जाते हैं तो वानर जो जिनके कोई हाथ कटे हैं, किसी के दोनों पैर कटे हैं, किसी के पूरे लिम्स कट गए हैं, और भगवान को खुशी खुशी हंसते हंसते बोलते हैं कि ये भगवान, मैंने आज 3 जन को मारा, मैंने आपके लिए ये सेवा की, मैं आज इस तरीके से युद्ध में मैंने अपने आनंद लिया। भगवान सोचते हैं कि ये आनंद लिया, इनके शरीर की बाजुएं, इनके पैर, इनका शरीर पूरा कट चुका है, और हाउ मच लॉर्ड इज इंडेप्टेड टू हिज डिवोटी। भगवान कितने कृतज्ञ, कितने भावुक हो जाते हैं जब ऐसे भक्तों को देखते हैं। अभी ये एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है, गुरु महाराज को देख के कोई अंग ठीक से चल नहीं रहा है, फिर भी वो पूरे भ्रमण कर रहे हैं। तो हमारे सामने भागवतम की जो पर्सनालिटीज हैं, दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ अस, एंड हम इसलिए सौभाग्यशाली हैं क्योंकि 5-10 साल के बाद जो भी सन्यासी प्रभुपाद जी के हैं वो ये धरातल से चले जाएंगे, क्योंकि सब लोग 80 की साल की आयु में हैं, और दे आर इन द टॉप मोस्ट एक्सेसी। भगवान की भक्ति में वो पूरे के पूरे इतनी तीव्रता से लगे हुए हैं कि उनके साथ भगवान का व्यवहार मुझे लगता है कि पल पल होता रहेगा। और ये हम लोग विटनेस कर सकते हैं आज की तारीख में। हमारी दूसरी पीढ़ी भी इतनी शुद्ध है, मैं उनके ऊपर संशय नहीं करता हूं, पर हम सोच सकते, हम इतने सौभाग्यशाली के प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण हैं वो हमारे सामने उपस्थित है, और उनकी अभी ये लीलाएं हो रही है हमारे सामने। अच्छा, हाउ टू टेक दिस फॉर मी एज ए इंडिविजुअल? ये इतना पेन लेते हैं, ये इतना दुख लेके भगवान के नाम में, भगवान के कार्यों में, भगवान के प्रचारार्थ कार्यों में इतने लिप्त हैं, और हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को लेके ये कार्य को पोस्टपोन करते हैं। छोटी छोटी इच्छाएं हैं, या मानसिक रूप से अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहे हैं कि इनके प्रति मुझे अच्छा नहीं लगता, ये पसंद है, ये नापसंद है, ऐसे द्वंद्वों से अभी भी हम लोग लिप्त हैं। तो कब तक ये द्वंद्व से लड़ते रहेंगे और ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगे कि जहां पे हम भगवान को बोल सके कि भगवान आपके प्रेम ही मुझे चाहिए, आपके प्रेम की ही याचना मुझे करनी है।
प्रभुपाद जी जब थे तभी किसी ने, उनके जो गुरु भाई थे, उन्होंने बताया कि महाप्रभु ने बोला है, इसलिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार और प्रसार शायद पूरे जगत के अंदर होगा, और महाप्रभु ने बोला है तो शायद हो ही जाएगा। प्रभुपाद जी खड़े हुए, एक स्टेप आगे आके बोले, और उसने बोला कि कौन करेगा ये प्रचार और प्रसार। तो वो जो बोलने वाले थे वो वरिष्ठ भक्त थे, वहां के नेता होंगे भक्तों में, और वो सोच रहे होंगे कि सब लोग बोलेंगे कि प्रभु आप ही करोगे ना ये प्रचार और प्रसार। प्रभुपाद जी खड़े हुए, 2 स्टेप आगे आके बोले कि महाप्रभु ने बताया है कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार देश विदेशों में होगा ही होगा, पर तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें संशय है। अ स्टिंज ऑफ डाउट कितना हमें पीछे धकेल देता है, थोड़ा सा डाउट, और प्रभुपाद जी फिर से पीछे आके बैठ गए। तो ये चीज है कि किस प्रकार संन्यास आश्रम के बारे में अभी भक्ति सिद्धार्थ, उन्होंने संन्यास आश्रम लिया प्रभुपाद जी ने, तो सब लोग, हम लोग ऐसा सोचते कि नहीं उनकी पत्नी ने भागवतम फाड़ दिया और प्रभुपाद जी नाराज होके संन्यास ले लिया। ऐसा नहीं था। ऐसा वास्तविक रूप में वो जो ज्वाला थी उनके हृदय के अंदर पहले से प्रज्वलित थी। उन्होंने समय नाग के गुरु ने आदेश किया कि अभी तुम्हें संन्यास लेना चाहिए। एक गुरु तो ये बताते हैं कि हर एक गृहस्थ को अपनी धोती का एक जो कॉर्नर है वो सेफ्रन कलर कर देना चाहिए। इतना फनी स्टेटमेंट है कि धोती का एक कोना सेफ्रन कलर होना चाहिए। क्यों? इट विल रिमाइंड यू दैट वन डे इफ नॉट एक्सटर्नली इंटरनली यू हैव टू बिकम सन्यासी। तो ये संन्यास आश्रम में भागवतम हमें मौका देती है कि किस प्रकार से किसी भी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करें, वो विषय वस्तु को किस प्रकार से हमारा कोर सब्जेक्ट क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अनन्य भाव से भक्ति में लगे, भक्ति शरणागति प्राप्त करें, और जो भी साधन, जो भी गुरु ने आज्ञा दी है उनका हम किस प्रकार से पालन करें, शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करें, यही हमारा कोर सब्जेक्ट है, और उसी के ऊपर बारंबार हम लोग आते हैं। तो प्रभु यहाँ पे ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 9:55। सो प्लीज forgive me if I committed some unintentionally अपराध to any subject matter or to anybody। किसी भी विषय के बारे में ठीक से बोला नहीं हूँ, या किसी पर्सनालिटी को ठीक से मैंने बताया नहीं है, तो प्लीज क्षमा कीजिए। और कुछ भी बोला है आपको अच्छा लगा है तो वो मैंने किसी के कथन को दोहराया है। हरे कृष्णा। जय प्रभु जी। Thank you, Sankarshan Prabhu, for so nicely explaining the different meanings or insights into today's verse. You very nicely gave us a background of or the context of this verse, where you explain how Narada Muni is explaining all the nuances of the Varnashrama Dharma, and today's verse was specifically dealing with the Sannyas Ashram. And you clarify to us the relevance of the qualities of sannyas ashram that we all can imbibe. You clarified that the goal of the Varnashrama Dharma is to please Lord Hari, and the Varnashrama system as established by the Lord is an arrangement for collectively carrying everyone to the platform of Krishna consciousness. And then you also, from a different angle, explained how, though the Lord has established this, he is not a part of it. And you highlighted to us that all the activities that we need, that we are engaged in our life, should help us in developing an attraction towards hearing Krishna Katha. Otherwise, it is simply a waste of effort. You also spoke on the 4 types of sannyasis. And you said sannyasi means he is materially dead, or he is dead to the material world. And then the basic criterion for sannyasi is
Anashrita Karma Phalam, which you nicely explained, and also give other definitions what Mahaprabhu has highlighted. Then you brought about a comparison between external aspects of a sannyasi and the internal aspects and the emergency situations. You highlighted that absorption is a very, very important quality in our Krishna consciousness. And you narrated so many beautiful verses from Chaitanya Charitamrita, especially quoting from the conversations between Mahaprabhu and Prakashananda Saraswati. The lessons that we could take from this particular pastime as to how we should always present ourselves in our in an honest position as a fallen conditioned soul in front of our spiritual master, and how Hare Krishna Mahamantra is the essence of all the mantras, which will ultimately give us darshan of Krishna's lotus feet. And this was a very significant point that we noted. You also quoted from Mahaprabhu's episode with the South Indian Brahmana, highlighting to us what exactly is the mood of a student of Bhagavad Gita, imbibing this South Indian Brahmana's mood. And then very beautifully you narrated so many personalities, quoted so many personalities from the Bhagavatam. For example, Kunti Maharani, Dhruv Maharaj, Prahlad Maharaj, Bhishma Pitamaha, with very wonderful analogies as to how all these glorious personalities are teaching us how our devotion in an unalloyed manner should flow towards Lord Krishna. You also talked about how the Vanaras reciprocated their love for Lord Ram, and then you connected that to how in today's world too, we have such glorious personalities, devotees in the Krishna consciousness movement who are exhibiting or who are living examples for all the qualities upheld in Srimad Bhagavatam. You quoted the episode of Kadam Kanan Maharaj and his love for chanting, also of Guru Maharaj's struggles in serving Srila Prabhupada. And then you highlighted to us the lessons that we need to learn from all of this. So the core principle of all this is that we should always remember Krishna and never forget Krishna. Another last point that I noted was you said our dhoti should always be colored in saffron, at least in one corner. And I just saw my dhoti, and coincidentally, my dhoti is of saffron color. So I was very happy that it's already fully colored. I'm just joking. Yeah. So thank you, Prabhu, for so nicely bringing out these important lessons for all of us from today's verse. Hare Krishna. So you can glorify the Bhagavatam, Prabhu, then we can. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। Hari Hari Bol.